Take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Priyanka and my channel's name is Priyanka's Learning Forum. So this is the first video on my channel and I have dedicated this channel to all those students who are sitting at home and trying to attempt some government examination but have no clue from where to start, and also for those students who know how to start but are feeling demotivated because of this pandemic. So I will try my best to bring up my learning experience and knowledge into this platform and help you all. So without further delay, let's begin. This is the first class of my lecture and it is an orientation class. So once the notification of any government exam is out, the first question which strikes your mind is, can you do it? That can you fill that exam and will you be able to clear it? So will you be able to clear it? इसका जवाब तो आपको अभी मिल ही नहीं सकता because you haven't attempted, you haven't seen the syllabus yet. But yes, if you have the inner voice that you can do it, at least give it a try. So you should always go ahead. So the second thing comes, do toppers only clear competition? This is a myth. दिस इज़ अ मिथ जो हमारे घर वाले प्लस हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हर कोई हमें बोलता आया है कि अरे तेरे एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर थे, तू कैसे क्लियर कर लेगा? अरे तू तो एक एवरेज स्टूडेंट रहा है, तू कैसे क्लियर करेगा? ये तो टॉपर्स के बस का है, ये तेरे बस की बात नहीं है. तो फ्रेंड्स, स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. और ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि टॉपर्स आर गोइंग टू क्लियर इट. अदरवाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी जो परसेंटेज मांगी होती दैट विल बी अबाव 80, 85 और 90%. बट वो आपको सिंपल बोल रहे हैं दैट अ ग्रेजुएट लेवल person can attempt our exam, or a person has cleared 10th examination, 12th examination can attempt our exam. So गवर्नमेंट आपको कहीं पर भी ये बात नहीं बोलती है कि आपको इतना डिवीजन नंबर लाना है, फर्स्ट डिवीजन आनी है, सेकंड डिवीजन आनी है, इतना परसेंटेज आना है, देन यू अटेम्प्ट आर एग्जाम. ऐसा आपको गवर्नमेंट कहीं पर भी नहीं बोल रही है. सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव वाइब्स, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल. डू टॉपर्स ओनली क्लियर ए कॉम्पिटिशन? नो, it is not true. The next is, do I have to study the whole day? ये एक और मिथ है जो किसी भी कंपटीशन को क्लियर करने से पहले दिमाग में आता है कि I have to study the full day. I have to dedicate my whole time to this exam. This is right. This is absolutely right. You should give your 100% to the exam. But your 100% is not countable on hours. It is not at all countable. क्योंकि आप 4 घंटे में कुछ याद करते हैं, कोई इंसान 2 घंटे में वही चीज़ कर लेता है और कोई पूरे दिन पढ़ता रहता है, उसके बाद भी उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन प्लस व्हाट इज़ योर अडेप्टेबिलिटी. आप किसी चीज़ को कैसे अडेप्ट करते हैं, आप किसी कंसेप्ट को कैसे समझते हैं. तो डू आई हैव टू स्टडी द होल डे, इसका जवाब किसी के पास नहीं होते, सबके अपने जवाब होते हैं. और ये बहुत बार मैंने ऐसा देखा है बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्जामिनेशन वंस अ टाइम. सो आई वॉज इन Delhi and I got admission in one of the premier institute there, and everybody has their own timetable, everybody has their own saying कि मैं तो 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, and I used to study for 6 to 7 hours, and those who were studying for 12 hours, 13 hours, they were not able to clear prelims also. So it all depends on what you are studying and how much time you want to clear any one topic. It is not at all decided by the hours, but it is decided about what you are understanding in that particular hour. So do I have to study the whole day? No, it depends. It depends, right? Then the next one is, should I follow the timetable as suggested by rank 1, 2, 3? This you can find on YouTube. There are n number of videos जो आपको ये बताते हैं ये मेरा टाइम टेबल है, एंड अदर पर्सन इज जंपिंग इनटू इट बिकॉज उसका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, उसको कभी किसी ने क्लियर कराया ही नहीं है. देर आर मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हु आर हायरिंग द रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3. दे आर कमिंग गिविंग लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, गिविंग लेक्चर्स ऑफ एनी अदर मीडिया एंड टेलिंग यू कि दिस इज़ माई टाइम टेबल, आई यूज टू फॉलो. प्लीज़ लर्न फ्रॉम इट. दे आर फॉलोइंग अ सर्टन टाइम टेबल. दिस इज़ द लर्निंग. You have to make your own timetable and follow it diligently. And it is a request that please make a realistic timetable. एकदम से if you are going to make the timetable कि I'll study for 8 to 9 hours,
I'll study for 10 hours, I'll study for 12 hours, आज तो हिस्ट्री ख़त्म कर ही लेनी है, आज तो नेशनल मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म है. No, please follow a realistic timetable. Make it slowly and gradually if you really want me to help it out. Please write in the comment section below. I'll suggest you that how to make a timetable to study for any government exam depending on the exam you're preparing for. Now the last and the foremost thing which you might be seeing here, do I have the internal fire to succeed? So if this is present in any person, in any particular person who is preparing for any competitive exam, ये सब नहीं भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता. Mind it, ये सब नहीं भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, because this is the most internal thing which one should have. This is the most important thing जो किसी भी aspirant के अंदर होनी चाहिए. If you have the fire to succeed, nothing can stop you. Know about your exam well. सब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक नोटिफिकेशन देखा है, गवर्नमेंट जॉब देखी और कूद पड़े तैयारी करने. नहीं, सबसे पहले आपको आपके एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ यू शुड नो अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन. द जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, वेयर यू विल बी पोस्टेड, ये स्टेट लेवल का है या ये सेंट्रल लेवल का है, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपके पास होना चाहिए. यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्ज़ाम. सेकेंड है हमारा नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न. ये तीनों इसी पॉइंट में कवर हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव टू रीड द नोटिफिकेशन वेल, यू हैव टू अडियर टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड यू शुड नो द एग्ज़ाम पैटर्न. क्या इस एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही बार होना है, देयर इज़ नो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू अटैच्ड, या इंटरव्यू होगा या सिर्फ एग्ज़ाम होगा, एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए बिफोर हैंड. इट शुड नॉट हैपन दैट आपने मज़े मज़े के लिए भर दिया, नाउ यू आर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू आर आस्किंग योर फ्रेंड कि यार इसमें इंग्लिश भी आनी थी क्या, या यार इसमें क्या 150 क्वेश्चन आने हैं. बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल व्हाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग दैट कुछ लोग तो ऐसे ही आते थे भीड़ बनाने के लिए, दे वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द एग्ज़ाम. So if you're a serious aspirant and you are really interested to clear the exam, you should read these things carefully, because यही एक आपका मेन होता है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको हेल्प करता है. उसके बाद आता है आपका लर्न द सिलेबस. यस, लर्न द सिलेबस. आई एम नॉट टेलिंग यू ऑल टू लर्न द नोट्स, द सब्जेक्ट, बट आई एम आस्किंग यू टू लर्न द सिलेबस. आपको जो सिलेबस होना चाहिए वो आपको बाय हार्ट रिमेंबर होना चाहिए. ऐसा नहीं, बिकॉज व्हेन यू आर स्टडिंग, होता क्या है, व्हेन यू आर स्टडिंग एंड यू आर सो लॉस्ट इन योर बुक्स कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट बिकॉज द बुक इज़ विद यू एंड यू हैव होल्डेड सो मच ऑफ मटीरियल, तो आप क्या कर रहे हो, उसके आगे आगे पढ़ते जा रहे हो. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. ठीक है, वो नॉलेज आपको आगे काम आएगी, बट यू कुड हैव इन्वेस्टेड दैट पर्टिकुलर टाइम इन रीडिंग सम अदर टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल था. सो प्लीज़ लर्न द सिलेबस. डू नॉट फिगेट एनी पॉइंट इन योर सिलेबस. एक्सेस पढ़ लो, कोई हार्म नहीं है, बट कुछ चीज़ें छोड़ दो दैन इट इज़ अ हार्म. गो थ्रू प्रीवियस पेपर्स. यस, आपको प्रीवियस पेपर्स पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज उसी से आपको हेल्प मिलेगी कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उनको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, एंड व्हाट ऑल डू यू नो अबाउट इट एंड हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट इट इन द एग्ज़ाम. देन इट इज़ नो द राइट सोर्सेज टू रेफर. आपके पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो इंटरनेट पर हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, या एन नंबर ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ हो. तो यू शुड ऑलवेज act smartly, diligently, that what are the right sources to refer. Right sources to refer, ये आपको हेल्प कर सकता है कोई भी आपका गाइड, कोई भी आपका मेंटोर, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं. इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू आउट इन दिस, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल टेल यू द राइट सोर्सेज टू रेफर फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम विच यू वॉन्ट टू फॉलो. नेक्स्ट इज डू नॉट होल्ड थिंग्स लाइक स्टडी मटेरियल, बुक्स एंड नोट्स. दिस ऑल्सो इंक्लूड्स कि आप ऐसा नहीं कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कोई स्टडी मटेरियल निकाला आपने वो भी ले लिया, ये भी ले लिया, एंड बेसिक सेम रहता है सबका. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अमेंडमेंट्स हैं तो वो उतने ही रहेंगे हर एक स्टडी मटेरियल में, बट इट इज़ यू हु हैव टू चूज़ कि कौन आपको क्या चीज़ एक्स्ट्रा दे सकता है. एंड एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए प्लीज़ आप तभी जाना जब आपका बेसिक क्लियर है. दैट इज़ माई लास्ट पॉइंट. स्टिक एंड लर्न बेसिक्स फर्स्ट.
अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं प्रीएम्बल क्या है, तो आप क्या करेंगे 42nd एंड 44th अमेंडमेंट पढ़ के? आपको पहले जानना ज़रूरी है कि आपका संविधान क्या है, व्हाट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट, व्हाट इज़ द प्रीएम्बल, एंड देन यू कैन फर्दर रीड इट और फर्दर स्टडी अबाउट इट. सिमिलरली यू शुड नो अबाउट द नेशनल मूवमेंट. उसके बाद आप बता सकते हैं कि सी राजागोपालचारी फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्विट इंडिया मूवमेंट को जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जब तक आपको आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे आगे. सो प्लीज़ टेक एंड लर्न द बेसिक फर्स्ट. इट इज़ रिटन बेसिक फर्स्ट. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बेसिक पढ़ के चले जाएं. सो ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो आपको एक एग्ज़ाम को भरने से पहले जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ टेस्ट ऑफ परसिवरेंस, यानी कि कीप वर्किंग हार्ड, डू योर बेस्ट. So friends, basically continuity is the key. If you are continuously doing your hard work, if you are continuously studying, you're continuously doing your best, then it is a test of perseverance and you will surely qualify some or the other exam very soon. The next is don't let the failure stop you. It is especially for those people who have actually attempted the exam before and they haven't cleared it. So please guys, don't let the failure stop you. Because if you are stopped now, then you cannot achieve anything further. Study smart. Number 1, prepare for success. Number 2, review, read, recall. सबसे पहले तो you should be prepared for success. You have to think positive and you should be prepared for success. Then you have to preview that what you have read. Then read it again and then recall, because retaining is the most important thing. आप बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन आप कुछ ही retain कर पाते हैं. If books are giving you 100%, you are only reading 80 to 90% out of it, and that I am telling you if you are extremely well in reading. And after reading 80 to 90%, you are only retaining 40 to 50%. और अगर ये 40-50% आप अपने एग्जाम में भी ले जाते हैं तो you are surely going to clear it. Then the next is self test. Yes, go for self test. Talk to yourself. You look like a fool, but still talk to yourself and see कि आप अपने self test में कितना achieve कर पाते हैं. And if you think you are prepared, go for the mock test. Especially आप सीधे mock test पे please jump मत करिएगा after reading something, because उसके बाद क्या होता है ना, if you will fail, so you will be demotivated. तो पहले self check कर लीजिए, उसके बाद आप mock test के लिए जाइए. Next is keep calm and say all is well. Yes, I'm a fan of the movie Three Idiots, and all is well is something very positive which I really feel. And one more line I have written here, if isn't then make it well. अगर all is well नहीं है तो guys make it well. So make it well कैसे होगा? आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, वापस से पढ़ना है, वापस से वही मेहनत करनी है, परसिवरेंस लाना है, कंटिन्यूटी लानी है, एंड यू विल अचीव सक्सेस वन डे और दी अदर. नेक्स्ट आता है आपका मेक अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है. योर स्टडी प्लान शुड बी रियलिस्टिक. इट शुड बी मोटिवेटेड बाय द रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और एनी अदर टॉपर, बट योर प्लान शुड बी योर प्लान. योर स्टडी प्लान शुड बी अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी and your thing to do well. So analyze your failure, and if you have attempted the exam before, or even if you have given the mock test and you failed, please mark out the areas where you are performing well, and please mark out the area where you are not at all performing well. So you have to work on both. If you are preparing well in some area, then give more time to that area, जिससे कि वो आपका ऐसा हो जाए कि अगर 10 questions आए हैं तो you are able to complete 9 questions at least. और जो एरिया आपका वेल नहीं है, and if you are finding difficult in managing it, so please read, study, take guidance, take coaching or any help you want to, और उस एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाइए. ठीक है, हर किसी के लिए हर चीज़ बहुत इजी नहीं होती. एवरीथिंग इज़ नॉट कप ऑफ केक फॉर एनी बडी. बट अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड होगा साइंस में. इफ़ आई एम अ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट तो मेरा एक एक्स्ट्रा वर्ड होगा इकोनॉमिक्स में. अगर कोई आर्ट साइंस से आया तो उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी में होगा. तो एवरीबडी हैज़ देयर पॉजिटिव्स, एवरीबडी हैज़ देयर नेगेटिव्स. तो अपने पॉजिटिव को और स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने नेगेटिव से भागिए मत, इनफैक्ट उसको बेटर करिए. देन डू टेक सम टाइम ऑफ. येस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ एक कमरे में लॉक होकर, ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते, बट एक कमरे में लॉक होकर आप सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे
तो इट डज़ंट मेक एनी सेंस। अगर ये पैंडमिक ना होता तो मैं आपको बोलती बाहर जाइए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा कॉफ़ी पीजिए, बट बिकॉज इट इज़ पैंडमिक टाइम एंड इट इज़ लॉकडाउन एंड वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सो गाइज प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप शोज़ देख सकते हैं, आप किसी का हर टाइम मोटिवेशन लेक्चर भी मत सुनिए, बिकॉज यू नो आप ऑलरेडी अगर अंदर से मोटिवेटेड फील करेंगे तो कोई कुछ भी कहे आप करते ही रहेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ड्रॉप डाउन हो जाता है, तब आप ज़रूर उनको सुन सकते हैं और ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। रेस्ट ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पर आपको ध्यान देना था। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर इन दिस ओरिएंटेशन क्लास। उसके बाद सो नाउ आफ्टर ऑल दिस थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट यू हैव टू रीड एंड हाउ यू हैव टू रीड, how to attempt a question, and what should be the strategy for a syllabus, what should be the strategy to appear in exam and clear it. So ये सब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में. Till the time, if you are still watching my lecture, please do like, share and subscribe to my channel, as I am a new YouTuber and I think that this is the right platform for me at the right time to guide you guys. So please support and thank you for watching till the end. Thank you.